बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज हम अपने 7th लेक्चर ऑन द सब्जेक्ट सेट टोपोलॉजी विद कोर्स कोड MTH251 में स्टडी करेंगे आर्बिट्ररी यूनियन ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन एंड finite intersection of open sets is open. We will further study interior point of a set. We will further study interior of a set, neighborhood of a point of a set, theorems on open sets in matrix spaces. जैसा कि आप लोगों को मालूम है डियर स्टूडेंट्स कि हमने अपने लेक्चर नंबर 6 में ओपन स्फीयर्स और ओपन सेट्स को स्टडी किया था। हम इस लेक्चर 7 में भी अपनी इस स्टडी को कंटिन्यू करेंगे। आपको याद है कि कोई भी सेट ओपन होता है अगर उसके हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें जो कि उस सेट के अंदर लाई करता हो। और हमने देखा कि अगर हम यूजुअल मीट्रिक में कोई पॉइंट लेते हैं तो उस पॉइंट के अबाउट जो ओपन स्फीयर आता है वो ओपन इंटरवल होता है। यूजुअल मीट्रिक इन R2 लें तो किसी भी पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग जो ओपन स्फीयर होता है वो ओपन डिस्क होती है। और हमने लेक्चर नंबर 6 में देखा कि अगर हमारे पास डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस है तो फिर उसके अंदर डिस्क्रीट मीट्रिक स्पेस में कोई भी सबसेट जो लिया जाता है वो ओपन सेट होता है। और हमने फर्दर ये भी देखा अपने लेक्चर नंबर 6 में कि ओपन स्फीयर जो होते हैं वो बजाते खुद भी ओपन सेट्स होते हैं। And further we have studied that a set G is open in a metric space XD if and only if it is union of open spheres. So whenever G is union of open spheres, it is open, and on the other hand, if G is open, then it is union of open spheres. So we will continue the study of open sets and open spheres in this lecture as well. So here we will study that arbitrary union of open sets is open. Any number of open sets if we have, then their union is again open. And if we have a finite number of open sets, then its intersection is open. The intersection of a finite number of open sets. Okay, we will give you a counter example which will be showing that an intersection of infinite many open sets may not be open. And further we will define interior point of a set and interior of a set. So let's have the first result related to our previous studies, that XD be a metric space, then union of any means arbitrary, either finite or infinite many number of open sets is open. So this is the first result. We just want to show that the union of any number of open sets is open. So any number means arbitrary number. It may have finite number or it may be any countable numbers. So we have to show that union of any number of open sets is open. Let Gi be a class of open sets in X. So in the proof, first of all, we consider Gi be a class of open sets in X. XD is a metric space. Here XD is a metric space with us. XD is a metric space. This XD is a metric space. This is a metric space. We have Gi is open for each I is equal to 1, 2 and so on. This is an arbitrary collection of open sets. It means G1 is open, G2 is open, G3 is open and so on. They all are open sets. This is a class of open sets in the metric space X. We have a metric space. This X is, suppose this is X, D a metric space. This is a ground set X. We have an open set G1, we have an open set G2, we have an open set G3 and G4 and G5 and G6, and we have an arbitrary number of open sets. This is a class of open sets in X. We just want to show that their union
G1, union G2, union G3, and so on. That is union of I, Gi. This is the union of the class of open sets. We have to show that this union is open. So we remember that whenever we have to show a set is open, we need to take a point of that set, and we need to show that the open sphere with center at that point and radius r is also contained in that set. So here, if Gi is empty in the first case, if each Gi is empty for each I, then their union is empty, of course. And this shows that this is an open set, because union of I, Gi is equal to phi, and we know that the ground set and the empty set are open sets. So if union of I, Gi is equal to phi, then it means union of class of open sets is again open. And if the case is non-trivial, that if Gi is not equal to phi, this Gi is not equal to phi for each I, or for some I, Gi is not equal to phi, then we need to show that union of I, Gi open. We need to show this open. Okay, where Gi is not phi, Gi is not phi. So we need to show this union open. It means we will take a point of this union, x belongs to union of I, Gi, and then show that there is, and by some logic we show that there is an open sphere with center at the point x and radius r is contained in union of I, Gi. If we succeed to show this relation for any arbitrary point x of this set, this will prove that for any element x of the set we can find an open sphere which is contained in union of I, Gi, and that is by definition union of I, Gi open. मैं रिपीट करता हूँ, आपको याद है कि अगर हमने किसी भी सेट A को ओपन शो करना हो, तो इसका प्रोसीजर, इसका लॉजिक ये है कि इसका एक आर्बिट्ररी पॉइंट सिलेक्ट करेंगे, हम किसी लॉजिक के थ्रू जाते 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 ये शो करेंगे कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए हम एक ओपन स्फीयर ऐसा फाइंड कर सकते हैं जो कि वापस ए के अंदर लाई करता है। इसका मीनिंग ये होता है कि फॉर ईच एक्स बिलोंग्स टू ए देयर इज एन ओपन स्फीयर विच इज कंटेन्ड इन ए, यानी ए जो है उसका हर पॉइंट के कॉरेस्पॉन्डिंग एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करता है जो ए में लाई करता है, और by this definition set A is open. A is open if for each x belongs to A we can find an open sphere with center at x and radius r such that this open sphere SRX is contained in A. अब चूंकि इस प्रॉब्लम में हमने यूनियन ऑफ आई जी आई को ओपन शो करना है, सो हम पॉइंट लेते हैं इस x belongs to union of आई जी आई का। चूंकि हमने इसे ओपन शो करना है, किसे ओपन शो करना है? यूनियन ऑफ आई जी आई को। सो जिस सेट को ओपन शो करना है उसका आर्बिट्ररी पॉइंट लेना है। सो लेट x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई जी आई। दिस इंप्लाइज x बिलोंग्स टू जी आई फॉर सम i। अगर कोई एलिमेंट 2, 3, 4 एनी नंबर ऑफ सेट्स की यूनियन में अवेलेबल है तो वो एलिमेंट उसके किसी भी मेंबर सेट में अवेलेबल होगा, वो एलिमेंट उसके किसी भी मेंबर सेट में अवेलेबल होगा। इन दिस केस x बिलोंग्स टू यूनियन ऑफ आई जी आई, तो फिर ये x किसी न किसी जी आई में मौजूद होगा फॉर सम i। अब चूंकि हर जी आई ओपन सेट है, बिकॉज दिस इज ए क्लास ऑफ ओपन सेट्स,
हर GI ओपन सेट है, लिहाजा जब भी इसका कोई एलिमेंट लेंगे उसके कॉरेस्पॉन्डिंग हमारे पास एक ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x एंड रेडियस r एग्जिस्ट करेगा, जो कि GI के अंदर कंटेन करेगा। डियर स्टूडेंट्स, चूंकि GI ओपन सेट है, डेफिनेशन की रूह से इसका जो भी पॉइंट लेंगे, और अभी हमने x इसका पॉइंट लिया है, तो फिर इस x को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा ऑफ रेडियस r, जो कि इस GI में लाई करेगा, और GI ऑब्वियसली कंटेन्ड है यूनियन ऑफ IGI में। इसका मतलब ये हुआ कि हमने एक ओपन स्फीयर SRX फाइंड कर लिया है जो कि यूनियन ऑफ IGI में लाई करता है। हमने एक ओपन स्फीयर SRX फाइंड कर लिया है जो कि यूनियन ऑफ IGI में लाई करता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूनियन ऑफ IGI इज ओपन। सो डियर स्टूडेंट, हमने ये शो किया इस थ्योरम में कि यूनियन ऑफ आर्बिट्ररी नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। सेकंड थ्योरम को लेते हैं। इस थ्योरम में हमें यह स्टेट किया गया है कि XD इज ए मेट्रिक स्पेस, देन इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हमने ये प्रूव करना है कि इंटरसेक्शन ऑफ फाइनाइट नंबर ऑफ ओपन सेट्स इज ओपन। हमारे पास हम अस्यूम करते हैं कि I varies from 1 to n be a class of finite number of open sets। so इस सिचुएशन में हमारे पास G1 ओपन है, हमारे पास G2 ओपन है, G3 ओपन है, and so on, and Gn, this is finite number of open sets। और हम शो ये करना चाहते हैं कि इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n GI ओपन। हम ये शो करना चाहते हैं कि दिस इंटरसेक्शन इज ओपन। ओके, we show that intersection of I equal to 1 to n GI is open in the metric space X। अब लॉजिक बेसिकली वही है, हमने जिस सेट को ओपन शो करना है उसका पॉइंट लेंगे और शो करेंगे कि एक ओपन स्फीयर ऐसा एग्जिस्ट करता है जो कि इस सेट के अंदर लाई करता है। इधर हम चूंकि इंटरसेक्शन I इज इक्वल टू 1 to n GI को ओपन शो करना चाहते हैं, लिहाजा हमें एक इसका आर्बिट्ररी पॉइंट लेना होगा और किसी लॉजिक के थ्रू हमें ये जाकर शो करना होगा कि हमारे पास कोई एक ओपन स्फीयर किसी भी रेडियस का एग्जिस्ट करता है जो कि इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n GI के अंदर लाई करता है। अगर हम इस बात को शो करने में कामयाब हो जाते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि फिर इंटरसेक्शन ऑफ I इज इक्वल टू 1 to n GI is open if we are successful in showing this relation for some r which is called radius of course greater than 0. So dear student, we need to show that intersection of I equal to 1 to n GI is open in X. If G1, G2, Gn is empty for some I equal to 1 to n, then by definition the whole intersection is an empty set, and we know that empty set is an open set. Therefore the intersection of I equal to 1 to n is equal to phi I equal to 1 to n GI is equal to phi is open. This is trivially proved. But if none of GI is empty, if intersection of I equal to 1 to n GI is not empty, if this intersection is not empty, then to show intersection I equal to 1 to n GI open, we simply take a point X in intersection of I equal to 1 to n GI. Since X belongs to, since
we are taking x in the intersection of I is equal to 1 to n gi, which is actually g1 intersection g2 intersection so on intersection gn. Now a point which is in the intersection of sets is a member of each member of the set. So this x will belongs to g1, this x will belongs to g2, this x will belongs to gn. So this implies x belongs to gi for each I is equal to 1 to n. Now since x belongs to gi for each I is equal to 1 to n, it means and each gi is open. This is open for each I. Now x belongs to g1 implies there will be an open sphere with center at x of radius r1 contained in g1, because g1 is open. So g1 चूंकि ओपन है, इसका जब भी कोई पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के अगेंस्ट एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो कि इस g1 के अंदर लाई करेगा. ऑफ कोर्स दिस रेडियस विल बी ग्रेटर देन 0. अब चूंकि x बिलोंग कर रहा है g2 को, because x belongs to gi for each I is equal to 1 to n. So x बिलोंग कर रहा है g2 को. जब ये g2 को बिलोंग कर रहा है तो फिर हमारे पास एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा. हो सकता है इसका रेडियस r2 हो, डिफरेंट फ्रॉम r1 हो, बट दिस ओपन स्फीयर विल अगेन बी कंटेन्ड इन g2 एंड दिस r2 is greater than 0. Similarly, x belongs to g3 implies that there will be an open sphere with center at x and radius may be different from r1 and r2, say r3, but this is contained in g3. Since g3 is open, therefore जब भी x इसका मेंबर होगा, इस x का एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा with center at x and some radius say r3, or this open sphere will be contained in g3 and this r3 is greater than 0. And similarly again x belongs to gn. अब चूंकि ये gn को बिलोंग करता है, लिहाजा एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा with center at x and radius say rn, and this must be contained in gn, or this rn is radius, so it is greater than 0. They may be same r1, r2, r3, or in general they may be different. If we take r is equal to minimum of this r1, r2 and rn, because each ri is greater than 0, r1 is greater than 0, r2 is greater than 0, r3 is greater than 0, rn is, each ri is greater than 0, their minimum number will also be greater than 0. So if we take an open sphere with center at x and radius r, which is minimum of the radii, then, so look, this is the situation. Suppose for two sets, this is an open sphere with center at x and radius r1. This is another, say, open sphere with center at x and radius say r2. This is another open sphere with center at x and radius say r3. Suppose we have three open spheres. So minimum of r1,
R2 R3 इस पिक्चर के अकॉर्डिंगली वो हमारे पास R3 है। और अगर आप ये नोटिस करें कि इस रेडियस का जो ओपन स्फीयर है वो कंटेन कर रहा है इन सारे ओपन स्फीयर्स में, वो कंटेन कर रहा है SR1X में भी, वो कंटेन कर रहा है SR2X में भी, और वो कंटेन कर रहा है SR3X में भी। सो जिस वक्त हम इस मिनिमम रेडियस का ओपन स्फीयर लेंगे तो ये कंटेन करेगा SRIX फॉर ईच I इक्वल टू 1 to n। इन तमाम ओपन स्फीयर्स के अंदर रेडियस R का ओपन स्फीयर कंटेन करेगा। सो डियर स्टूडेंट्स, now choose R is equal to minimum of R1, R2, Rn, then open sphere with center at X and radius R will be contained in SRI X for each I is equal to 1 to n, and this implies that SRX is contained in intersection of GI, and this proves that intersection of I equal to 1 to n GI is open in X. So this completes the proof. So in theorem 1 we have noticed that union of any number of open sets is open, but in theorem 2 we have noticed that intersection of finite number of open sets is open, and previously we also have the knowledge that empty set phi and the ground set X are always open. So here it is the example जो कि ये शो करती है कि अगर आप आर्बिट्रारी इंटरसेक्शन लें ओपन सेट्स का तो वो जरूरी नहीं कि ओपन हो। So this example 3 actually states, in general, intersection of arbitrary number of open sets is not necessarily open. Open हो भी सकता है लेकिन हमेशा open नहीं होगा। So this is not the general statement. This is not complete statement that intersection of arbitrary number of open sets is open. No, sometimes it may be open, sometimes it may not be open. So in general, intersection of finite number of open sets is open. So it is clear from the following example. इस जगह पर हमने RD को usual metric space लिया है। Let RD be the metric space with usual metric. आपको पता है कि R में जो usual metric होती है, R में जो usual metric होती है उसमें x minus distance between x and y is equal to absolute value of x minus y with usual metric. So RD be the metric space with usual metric. Then हम ये हमारे पास रियल लाइन है, this is a real line, this is my infinity, this is minus infinity, this is somewhere 0, here we have 1, here we have 2, here we have 3, and so on, and on the left side this is equal to minus 1 and minus 2 and minus 3 and so on. हम इसमें open interval ले रहे हैं. There is one open interval minus 1 to 1. This is the first open interval. Then we are taking 1 by 2. This is minus 1 by 2 and this is 1 by 2. The next open interval is minus 1 by 2 and 1 by 2. Then we are taking another open interval minus 1 by 3 and 1 by 3. Then we are taking another open interval minus 1 by 4 and 1 by 4 and so on. So these are nested open intervals. Nested, एक के अंदर दूसरा open interval, उसके अंदर दूसरा open interval. तो हमें मालूम है कि usual metric space में open intervals open sets होते हैं. So this n is going on. So this is an arbitrary collection of open sets. So in this example, we have an arbitrary collection of open sets. Is a collection of open sets in R.
This is arbitrary, this is not finite, because minus 1 over n and 1 over n and still it is going on. Let us take the intersection of this infinite many open sets, that is intersection I equal to 1 to infinity, minus 1 by n and 1 by n. So I equal to, जिस वक्त हम 1 लेंगे तो पहला सेट आएगा इस क्लास ऑफ ओपन सेट्स का, जब I को 2 लेंगे तो सेकंड सेट आएगा, और जब so this is a G1, this is a G2, this is a G3 and so on. बिलफर्ज मैं लेट कर लेता हूँ कि लेट G1 is equal to minus 1 and 1, G2 is equal to minus 1 by 2 and 1 by 2 and so on. So this is a collection of infinite many sets और उनकी intersection ली है. So you can notice that the common point in the intersection will be this 0, and this is a singleton set. This is a singleton set. This is a set with only member, with only element 0. So whenever we take, हम देखना चाहते हैं कि क्या ये इंटरसेक्शन जो कि 0 के बराबर आया है, क्या ये ओपन सेट है? हमें मालूम है कि कोई भी सेट उस वक्त ओपन होता है जब उस सेट के पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर फाइंड किया जाए और वो ओपन स्फीयर वापस उस सेट के अंदर लाई करे, तो फिर वो सेट ओपन होता है. लिहाजा इस सेट जिसका एक ही मेंबर है 0, हम इस 0 को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर लेते हैं ऑफ रेडियस r, वेयर r इज ग्रेटर देन 0. हमें मालूम है कि ये जो ओपन स्फीयर होगा, इस ओपन स्फीयर के जो मेंबर्स होंगे वो ओपन इंटरवल होगा यूजुअल मीट्रिक ऑन r में, और वो होगा r माइनस r एंड r, दैट इज 0 माइनस r एंड 0 प्लस r. इस 0 में से जिस वक्त हम r को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हम इधर आएंगे, और जिस वक्त इस 0 में r को ऐड करेंगे तो हम इधर आएंगे. सो दिस ओपन इंटरवल इज एक्चुअली एन ओपन स्फीयर विद सेंटर एट 0 and radius r, however negligible small r may be. So this open sphere will not be contained in the open set with element 0 alone. ये ओपन स्फीयर चूंकि 0 के अलावा भी पॉइंट्स को कंटेन कर रहा होगा, ये सिचुएशन है. ये हमारे पास 0 है, लेकिन जितना भी छोटे से छोटा ओपन स्फीयर मैं लूंगा इस पॉइंट 0 का, तो वो ये वाले पॉइंट भी कंटेन कर रहा होगा. लिहाजा ये इस सेट 0 के अंदर लाई नहीं करेगा. अगर इसमें लाई नहीं करेगा तो इसका मतलब ये हुआ कि S के इंटरसेक्शन I equal to 1 to infinity and the intersection of this arbitrary class which is equal to 0 is not an open set. Is not open in R because we cannot find an open sphere SR0 contained in 0 for R greater than 0. So dear students, हमने इसमें देखा कि हमारे पास collection of open sets है. This is an infinite many open sets, लेकिन इसकी जो intersection है वो वापस open नहीं है. Dear students, हम एक नए नोशन को डिफाइन करते हैं, स्टडी करते हैं. इसको हम नेबरहुड कहते हैं. नेबरहुड, जब भी हम नेबरहुड लेते हैं वो किसी पॉइंट का लेते हैं. हम लेट करते हैं कि हमारे पास XD कोई मीट्रिक स्पेस है. इस XD में एंड A बी एनी पॉइंट ऑफ X, और मैं इस जगह पे पिक्चर बनाने की कोशिश करता हूं कि दिस इज से ग्राउंड सेट, X with metric defined on this D. हम इसका कोई पॉइंट लेते हैं A. So let XD be a metric space and A be any point of X. This A is any point of X. This A belongs to X. A subset N of X
इज कॉल्ड ए नेबरहुड ऑफ ए। अब एक कोई सबसेट लेता हूं मैं, ये कोई सबसेट, इसको n का नाम देते हैं, ये इस पॉइंट का नेबरहुड होगा। n इज, इसको शॉर्टली हम लिखते हैं NBD, नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A। इस पॉइंट A का नेबरहुड होगा। इफ दिस इफ इज इंपॉर्टेंट, अगर देयर एग्जिस्ट्स एन ओपन सेट U, अगर कोई ओपन सेट U एग्जिस्ट करता हो, कोई ओपन सेट U एग्जिस्ट करता हो सच दैट ये A इस U को बिलोंग करता हो, इफ देयर एग्जिस्ट, this is a notation used for there exist open set U, एक ओपन सेट U एग्जिस्ट करता हो सच दैट, कैसा ओपन सेट हो कि ये A इस ओपन सेट को बिलोंग करे और ये ओपन सेट कंप्लीटली इस N के अंदर लाई करे। अगर तो ये रिलेशन होल्ड कर जाए तो फिर ये सेट N जो है ये नेबरहुड ऑफ द पॉइंट A कहलाता है, राइट। सो दिस इज कॉल्ड नेबरहुड ऑफ द पॉइंट है। इसका मतलब है कि जब भी कोई सेट किसी पॉइंट का नेबरहुड होगा तो वो किसी ओपन सेट को कंटेन करता होगा और वो ओपन सेट उस पॉइंट को भी कंटेन करता होगा। डियर स्टूडेंट, हम एक और डेफिनेशन को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। रिमेंबर, first we have studied neighborhood of a point. Now we are going to define interior point of a set. Interior point of a set. Interior point of a set. इससे पहले हमने स्टडी किया नेबरहुड ऑफ ए पॉइंट। अब हम स्टडी करना चाह रहे हैं इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सेट। सो लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस। अगेन सिचुएशन ये है कि हमारे पास कोई एक्स डी एक मीट्रिक स्पेस है एंड ए इसका एक सबसेट है। दिस ए इज ए सबसेट ऑफ एक्स एंड ए बी ए सबसेट ऑफ एक्स। ए पॉइंट A belonging A, इसका एक पॉइंट A लिया है। A is a subset of X। फिर एक पॉइंट A belonging A ले रहे हैं। A belongs to A। A point A in A is called interior point of A if A is the center of some open sphere contained in A। अगर हमारे पास A belongs to A, A is called interior point of the set A if, so this if is important, there exists an open sphere with center at A, radius R, such that this open sphere is contained in A. If there exists an open sphere, अगर हम ऐसा ओपन स्फीयर ढूंढ सकें जिसका सेंटर A पर हो और कोई रेडियस हो ग्रेटर देन 0, हाउएवर स्मॉल में भी, लेकिन ये ओपन स्फीयर इस A के अंदर लाई करता हो, हम एक ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें विद सेंटर एट A एंड रेडियस सेंटर एट A
and radius r. This is open sphere with center at A and radius r. This is the radius of the open sphere. अगर हम ऐसा ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें जो कि इस ए में लाई करता हो, तो फिर दिस पॉइंट ए इज कॉल्ड इंटीरियर पॉइंट ऑफ द सेट ए. This point A is called interior point of the set A if we can find an open sphere with center at A and radius r such that this open sphere is contained in A. और अगर कोई ऐसा ओपन स्फीयर ना फाइंड कर सकें जो कि ए के अंदर लाई करता हो, तो फिर ए के उस पॉइंट को हम इंटीरियर पॉइंट नहीं कहेंगे. इंटीरियर पॉइंट होने के लिए ज़रूरी है कि हम उस पॉइंट के अगेंस्ट उसको सेंटर मानते हुए एक ऐसा ओपन स्फीयर फाइंड करें जो कि ए के अंदर लाई करता हो. सो दिस पॉइंट इज कॉल्ड. तो देन collection of all the interior points of A is called interior of A. The interior of A, you can notice interior of A is denoted by int of A. Now int of A is interior of A is denoted by int of A is the collection of all the interior points of A. जो points interior points होंगे उन तमाम की collection को int of A कहते हैं. int of A is a set of all interior points of A. So int of A is the collection of those elements of A whose open spheres are contained in A for some r greater than 0. अगर कोई x1 बिलोंग करता है int of A को, तो इसका मतलब ये होगा कि हमारे पास एक ओपन स्फीयर विद सेंटर एट x1 एंड रेडियस से r इज कंटेन्ड इन A. ओपन स्फीयर A में कंटेन करता होगा अगर x1 जो है वो int of A का पॉइंट है. अगर x2 कोई int of A का पॉइंट है, तो इसका मतलब ये होगा कि फिर कोई एक और ओपन स्फीयर with center at x2 and any radius delta will be contained in int of A. So जब भी कोई पॉइंट int of A को बिलोंग करेगा, उस पॉइंट को सेंटर मानते हुए एक ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा जो कि A के अंदर लाई करेगा. So int of A is collection of all the interior points of A. Int of A is collection of all the interior points of A. Right. Dear students, हम एक थ्योरम को अटेम्प्ट करते हैं. This is a result कि XD be a metric space and A is subset of X, then int of A is the largest open subset of A. So इस थ्योरम में हम दो चीज़ें प्रूव करना चाहते हैं. दिया हुआ ये है, it is given ये है कि XD is a metric space A is a subset of X. हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि number 1, int of interior of the set A, which is int of A, is open, and secondly जितने भी ओपन सेट्स A में कंटेन हैं ये लार्जेस्ट ओपन सेट कंटेन इन A है. ये जितने भी ओपन सेट्स को कंटेन करता है ये उनमें सबसे बड़ा ओपन सेट है. सो इसकी स्टेटमेंट पे फिर अगर हम तवज्जो करें कि XD be a metric space and A is contained in X, then int of A is the largest open subset of A.
लार्जेस्ट है और ओपन है, लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए। आपको याद है कि इंट ऑफ ए को हमने कैसे डिफाइन किया है, दिस इज कलेक्शन ऑफ एलिमेंट्स। किसके एलिमेंट्स लिए गए, ए से लिए गए। कैसे एलिमेंट्स लिए गए, जिनके ओपन स्फीयर ऑफ सम रेडियस कंटेन इन ए हो। तो इसका मतलब है कि ये सारे का सारा सेट जो होगा ये ए का सबसेट होगा। सो दिस इज ऑलवेज कि इंट ऑफ ए इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। सो रिमेंबर दिस इज ऑलवेज ए सबसेट ऑफ ए। जब भी किसी सेट का हम इंटीरियर फाइंड करते हैं तो वो सबसेट होता है ओरिजिनल सेट ए का, वो उससे बाहर नहीं होता। तो हमने इस स्टेटमेंट में दिया हुआ है कि लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ ए, ये ओपन है इंट ऑफ ए, इसको एक शो करना है कि दिस इज ओपन, और सेकंड शो करना है कि ये ए जितने भी ओपन सेट्स अपने अंदर कंटेन करता है ये उनमें से सबसे बड़ा ओपन सेट है। So these are two parts which we need to prove in this theorem. So let's go ahead. Int of A is the collection of elements x such that x belongs to A and SRx is contained in A for some r is greater than 0. This is by the definition of the interior of A. To prove that int of A is open, हम दो हिस्से प्रूव करना चाहते हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि int of A is open, और दूसरा ये कि एक जितने भी ओपन सेट कंटेन करता है ये उनमें सबसे लार्जेस्ट है। तो हम पहले हिस्से को प्रूव करते हैं, और पहला हिस्सा ये है कि int of A is open। अब आपको याद है कि जब भी हम किसी सेट को ओपन प्रूव करना चाहते हैं, याद रखें कि हम इस जगह पर int of A को ओपन शो करना चाहते हैं। ठीक है, इसे हम ओपन शो करना चाहते हैं, हम शो करना चाहते हैं। जब भी किसी सेट को ओपन शो करना चाहते होते हैं तो हम उस सेट का एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं और उस पॉइंट के अबाउट एक ओपन स्फीयर फाइंड करते हैं और शो करते हैं कि वो ओपन स्फीयर इस सेट के अंदर लाई करता है। अगर वो ओपन स्फीयर इस सेट के अंदर लाई करता है तो फिर ये सेट हमारे पास ओपन है। सो वी टेक एन आर्बिट्ररी पॉइंट y इन int of A। हम देखते हैं कि क्या ये y, हमने ये इसका int of A का एलिमेंट लिया है। सो डेफिनेशन की रूह से जब y int of A को बिलोंग करेगा तो फिर हमारे पास एक ऐसा ओपन स्फीयर एग्जिस्ट करेगा ऑफ रेडियस r विद सेंटर एट y जो कि A के अंदर लाई करेगा। दिस इज डेफिनेशन ऑफ int of A। सो whenever y belongs to int of A, it means there exists an open sphere with center at y and radius r which is contained in A for some r greater than 0. So this is by the definition of the interior of A. So here what we have done, हमने y पॉइंट लिया है int of A का। क्यों इसका पॉइंट लिया है? चूंकि हम int of A को ओपन शो करना चाहते हैं। हमने जब भी किसी सेट को ओपन शो करना हो हम उसका पॉइंट लेते हैं, और हमारा टारगेट ये है कि हम कोई ऐसा ओपन स्फीयर फाइंड कर सकें किसी भी रेडियस का, बिलफर्ज r1 रेडियस का, और वो ओपन स्फीयर इस int ऑफ A के अंदर लाई करता हो। अगर हम सक्सेसफुल हो जाते हैं इस प्रोसेस में तो इसका मतलब ये होगा कि int of A is open. So this is the definition that how we show a set open. तो int of A को जब ओपन शो करना है तो इसका आर्बिट्ररी पॉइंट लिया। हम शो करना चाहते हैं कि इस पॉइंट को सेंटर मानते हुए जो ओपन स्फीयर ऑफ एनी रेडियस r1 लें वो int of A में लाई करे। लेकिन अभी इस स्टेज पर चूंकि y int of A को बिलोंग करता है तो int of A की डेफिनेशन के मुताबिक हमारे पास जो ओपन स्फीयर विद सेंटर एट y एंड रेडियस r होगा वो A के अंदर लाई करेगा। बट वी हैव टू शो दैट फॉर सम r1 ग्रेटर देन 0 SR1y इज कंटेन्ड इन int of A। हमारा ये टारगेट है, लिहाजा हम एक r1 चूज करते हैं और लेट करते हैं कि दिस r1 इज इक्वल टू r माइनस dxy फॉर सम x बिलोंग्स टू SRy।
इस बात को थोड़ा सा क्लियर करने के लिए, सपोज हमारे पास ये मैट्रिक्स स्पेस है XD, इसमें हमने एक कोई सबसेट लिया है सपोज A। हम शो करना चाहते हैं कि इस का जो इंटीरियर है, जो कि हमेशा इसका सबसेट होता है, वो ओपन है। इसका इंटीरियर जो कि इसका हमेशा सबसेट होता है बाय डेफिनेशन int ऑफ A, हम इस int ऑफ A को ओपन शो करना चाहते हैं। हमने int ऑफ A का कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है, इसको हमने कहा है कि लेट y बिलोंग्स टू int ऑफ A। हमने इसका कोई आर्बिट्ररी पॉइंट लिया है। डेफिनेशन की रूल से जब भी हम int ऑफ A का पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट के अबाउट जो ओपन स्फीयर होगा, वो ओपन स्फीयर A में लाई करेगा। दैट ओपन स्फीयर इज कंटेन इन A। अब हमने ऐसा किया है कि एक कोई और पॉइंट इसमें ले लिया है x SRY में। सो दिस ओपन स्फीयर SRY में एक पॉइंट ले लिया है, इसको हमने कह दिया x। तो दिस रेडियस इज r, दिस डिस्टेंस इज dxy। हमने r1 लिया है, दिस r minus dxy. So this r1 which is equal to r minus dxy for some x belongs to SRY, then obviously this r will be greater than 0, but of course this is less than, this r1 is less than r. हम कंस्ट्रक्ट करते हैं ओपन स्फीयर SR1Y। हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं z ऑफ द ओपन स्फीयर SR1Y, और फिर चूंकि ये z इस ओपन स्फीयर SR1Y को बिलोंग कर रहा है, लिहाजा डिस्टेंस बिटवीन z एंड y जो होगा दैट विल बी लेस देन r1, the radius of the open sphere. But dxz is less than equal to, by the triangle property of the matrix spaces, that dxz is less than equal to dxy plus dyz, and this is less than r1 plus dxy, because dyz is less than r1, so this is less than r1 plus dxy. And from equation here from this equation you can find that dxy r1 plus dxy, and that r1 is equal to r minus dxy and plus dxy. So placing the value of this r1 from this equation, the value of r1 is equal to r minus dxy plus dxy. So dxy will cancel this dxy, and therefore we will get dxz is less than r. So this gives that z is a member of SRX, because dxz is less than r, it means z belongs to the open sphere with center at x and radius r. This implies that z belongs to int of A. So we have taken originally z belongs to this set and SR1Y, and we have shown that this z belongs to int of A. So this implies that SR1Y is contained in int of A. और हमने y जो है वो इनिशियली पॉइंट लिया था int ऑफ A का, और हम सक्सेसफुल हो गए हैं, एक ओपन स्फीयर फाइंड कर लिया है जो कि कंटेन कर लिया है int ऑफ A में। तो इसका मतलब ये हुआ कि int ऑफ A is an open set, is an open set. So int of A is open set. डियर स्टूडेंट्स, हमने फर्स्ट पार्ट में प्रूव किया है कि जब भी किसी सेट का हम इंटीरियर लेते हैं
तो वो ओपन सेट होता है। सो इस थ्योरम में हमने प्रूव ये करना था कि int ऑफ a इज द लार्जेस्ट ओपन सेट। सो सेकंड पार्ट को प्रूव करने के लिए कि इट रिमेन्स टू शो दैट int ऑफ a इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a। फॉर दिस हम कोई और आर्बिट्ररी ओपन सबसेट ऑफ a लेते हैं और इसको b कहते हैं। लेट b बी एन अदर ओपन सबसेट ऑफ a। हम देखते हैं कि क्या ये b int ऑफ a के अंदर लाई करता है। इसका मतलब ये होगा कि कोई भी और ओपन सेट अगर a के अंदर लिया जाए और वो int ऑफ a में लाई करे तो इट मीन्स देन int ऑफ a इज द लार्जेस्ट ओपन सेट। देन x belongs to b, so let b be any other open subset of a, then x belongs to b is a center of some open sphere SRX contained in b, but x belongs to a, so x is an interior point of a. Once it is an interior point of a, it means x belongs to int of a. इसका मतलब ये हुआ कि हम जब भी कोई b का एलिमेंट लेते हैं वो int of a को भी बिलोंग कर जाता है। गोया कि b जो है वो int of a का सबसेट है। अगर b int of a का सबसेट है तो हमने एक आर्बिट्ररी ओपन सबसेट ऑफ a कंसीडर किया था और हमने अल्टीमेटली देखा कि वो int of a का सबसेट है। तो दिस प्रूव्स दैट int of a इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ a। दिस कंप्लीट्स द प्रूफ। सो डियर स्टूडेंट्स, इस थ्योरम में हमने दो बातों को नोटिस किया है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में जब किसी सेट A का इंटीरियर फाइंड करते हैं तो वो दो प्रॉपर्टीज होल्ड करता है। एक उसकी ये प्रॉपर्टी है कि वो ओपन सेट होता है और उसकी दूसरी प्रॉपर्टी ये है कि A के अंदर जितने भी ओपन सेट्स होते हैं वो उन सब में से लार्जेस्ट ओपन सेट होता है। ओके, सो हम नेक्स्ट रिजल्ट थ्योरम नंबर 4 को देखते हैं कि लेट एक्स डी बी ए मीट्रिक स्पेस एंड A is a subset of x, then A is open if and only if A is equal to interior of A. Now look dear students, this is if and only if statement. इस स्टेटमेंट में ये बताया गया है कि अगर A ओपन है तो फिर ये इंटीरियर ऑफ A के बराबर होगा और अगर A इंटीरियर ऑफ A के बराबर है तो फिर ये ओपन होगा। दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। A is open dear students, A is open implies A is equal to int of A। जब भी A बजाते खुद ओपन होगा तो ये अपने इंटीरियर के बराबर होगा एंड कन्वर्सली जिस वक्त A इंटीरियर ऑफ A के बराबर होगा, जिस वक्त A इंटीरियर ऑफ A के बराबर होगा तो फिर ये ओपन होगा। सो दिस इज इफ एंड ओनली इफ स्टेटमेंट। इसके फर्स्ट पार्ट में हम सपोज करते हैं कि A इज ओपन। जब A ओपन है तो वी हैव टू प्रूव दैट A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A। ये हम प्रूव करना चाहेंगे। सिंस A इज ओपन सबसेट ऑफ A, देयरफॉर A इज कंटेन्ड इन int of A। Because this A is arbitrary open subset of A and int of A is the largest open subset of A by definition, लिहाजा कोई भी और open subset of A जो होगा वो int of A का subset होगा। अब चूंकि A हमारे पास A का open subset है लिहाजा A is contained in int of A, but by definition int of A is always subset of A। जैसा कि मैंने आपको बताया है कि जब भी किसी सेट का इंटीरियर लेते हैं तो जो int of A सेट बनता है वो A का सबसेट होता है। जब A B का सबसेट हो और B A का सबसेट हो तो वो फिर दोनों सेट बराबर होते हैं। देयरफॉर int of A इज इक्वल टू A। सो दिस कंप्लीट्स द फर्स्ट पार्ट कि जिस वक्त हमने A को ओपन लिया है तो हमने प्रूव किया है कि A इज इक्वल टू int of A। और कन्वर्स के अंदर जब हम इस पार्ट को लेट करते हैं कि A इज इक्वल टू int of A, हम लेट करते हैं कि A इज इक्वल टू int of A, तो हम प्रूव ये करना चाहते हैं कि A इज ओपन। चूंकि हमने अभी प्रीवियस थ्योरम में थ्योरम नंबर 3 में ये प्रूव किया है कि int of A इज ओपन ऑलवेज, लार्जेस्ट ओपन
ओपन, int of a इज ओपन, अगर ये ओपन है तो जो सेट इसके इक्वल है वो भी ओपन होगा। चूंकि ये सेट ओपन है, इसका मतलब ये हुआ कि चूंकि ये ओपन है, लिहाजा a जो कि int of a के इक्वल इस वक्त हमें हाइपोथेसिस में दिया हुआ है, तो इसका मतलब ये हुआ कि a इज ओपन। सो लिहाजा इस जगह पे इसलिए लिखा है कि कन्वर्स इज ऑब्वियस, इट इज ट्रिवियल। ओके डियर स्टूडेंट्स, जब भी किसी सेट का इंटीरियर उस सेट के बराबर होता है तो वो सेट हमारे पास ओपन होता है, एंड कन्वर्सली अगर कोई सेट ओपन होता है तो फिर उसका इंटीरियर उसके इक्वल हो जाता है। हम एक थ्योरम लेते हैं कि XD be a metric space and A is a subset of X, then prove that int of A is the union of all open subsets of A. XD metric space है, हमने ये प्रूव करना है कि int of A is the union of all open subsets of A. int of A के तमाम ओपन सबसेट्स की यूनियन होता है। हमने ये प्रूव करना है कि किसी भी मीट्रिक स्पेस में int of A में मौजूद तमाम ओपन सेट्स की यूनियन के बराबर होता है। int of A is the union of all open subsets of A. हम प्रूफ में अस्यूम करते हैं कि GI be the class of all, so this all is important, class of all open subsets of A. We have to show that int of A is equal to union of GI, that is int of A is union of all open subsets of A. So we have to show that int of A is equal to union of GI, where GI is the collection of all open subsets of A. So dear students, union of GI is open, since we know by the previous theorem that arbitrary union of open sets is open, hence union of GI is open, being union of open sets. Theorem 3 जो कि अभी हमने इससे पहले प्रूव किया है, that union of GI is contained in int of A, because each GI is contained in A and GI is open. तो A के जो भी ओपन सेट्स होते हैं वो int of A के अंदर कंटेन करते होते हैं। A के जो भी ओपन सबसेट्स होते हैं वो int of A के, because this is the largest open set, largest open set contained in A. This is the largest open set contained in A. जो भी दूसरे ओपन सेट्स A में कंटेन करते होते हैं तो वो int of A में भी कंटेन करते होते हैं। अब चूंकि तमाम के तमाम GI int of A में कंटेन करते हैं तो इसका मतलब ये होगा कि यूनियन ऑफ GI जो है वो भी int of A में कंटेन करेगा। So union of GI is contained in int of A. Int of A is the largest open set contained in A. To prove int of A is, so चूंकि हम ये प्रूव करना चाहते हैं एक्चुअली कि int of A is equal to union of GI, तो एक हम ये प्रूव करना चाहते थे कि union of GI is contained in A, int of A, और सेकेंडली हम ये शो करना चाहते हैं कि int of A is contained in union of GI। तो ये दोनों मिलकर ये शो करेंगे कि int of A is equal to union of GI। सो पहले पार्ट में हमने ये प्रूव किया है कि union of GI is contained in int of A। नाउ हम ये प्रूव करना चाहते हैं कि int of A is contained in GI। सो इस चीज को प्रूव करने के लिए, चूंकि हम प्रूव करना चाहते हैं कि int of A is contained in union of GI, हम एक आर्बिट्ररी पॉइंट लेते हैं इस सेट int of A का और शो करना चाहेंगे कि ये X यूनियन ऑफ GI को बिलोंग करता है। दिस इज यूनियन ऑफ GI, यूनियन ऑफ GI।
So this implies, because this X belongs to int of A, by the definition of int of A, there exists an open sphere with center at X and radius R, which will be contained in A for some R greater than 0. That is, X is in some open sphere contained in A. X is in some open sphere contained in A. But we know that open sphere, X is in some open sphere contained in A, but open spheres are open sets. This is what we already have proved, and therefore must be in the class of all open subsets Gi, which implies that int of A is contained in Gi. Because Gi is the collection of all open subsets of A, and we know, but open spheres are open sets and therefore must be in the class of all open subsets Gi, which implies that int of A is contained in Gi. Hence, int of A is equal to union of Gi. So this completes the proof. Dear students, आज हमने देखा कि इंटीरियर ऑफ ए सेट इन ए मैट्रिक्स स्पेस को कैसे डिफाइन किया जाता है। हमने किसी भी मैट्रिक्स स्पेस XT में किसी सबसेट A के इंटीरियर को डिफाइन किया। फिर हमने ये प्रूव किया कि इंटीरियर ऑफ A इज द लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। इस थ्योरम में हमने दो पार्ट प्रूव किए। एक तो ये प्रूव किया कि इंटीरियर ऑफ A इज ओपन, और दूसरा ये प्रूव किया कि दिस इज लार्जेस्ट ओपन सबसेट ऑफ A। A के अंदर जितने ओपन सेट्स हैं उनमें सबसे बड़ा ओपन सबसेट int ऑफ A है। फिर हमने एक प्रूफ थ्योरम लिया कि A इज ओपन इफ एंड ओनली इफ A इज इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A। इस थ्योरम के दो पार्ट्स थे। जब हमने A को ओपन कंसीडर किया तो फिर हमने प्रूव किया कि A इंटीरियर ऑफ A के बराबर है, और कन्वर्सली और ट्रिवियली हमने देखा कि जब A इक्वल टू इंटीरियर ऑफ A के बराबर है तो फिर A जो है वो ओपन सेट है। थर्ड रिजल्ट में थ्योरम में हमने ये प्रूव किया कि इंटीरियर ऑफ A इज द यूनियन ऑफ ऑल ओपन सबसेट्स ऑफ A। जब भी A के तमाम ओपन सबसेट्स का यूनियन हम ले लेते हैं तो वो इंटीरियर ऑफ A बन जाता है। तो डियर स्टूडेंट्स, किसी भी मैट्रिक्स स्पेस में किसी सेट A के इंटीरियर और उससे रिलेटेड रिजल्ट्स को हमने स्टडी किया है, और आप इन रिजल्ट्स को केयरफुली प्रूव भी करेंगे और इससे रिलेटेड फर्दर एग्जांपल्स को भी अपने एंड के ऊपर फाइंड करेंगे और उनको स्टडी करेंगे।